which is physical and index properties of soil. So moving further, starting this chapter. So what does this chapter say? This chapter tells us about the physical and index properties of soil. So what are the physical properties and what are the index properties? We are going to study right now. So the first thing, which is soil as a three-phase system. So soil is basically three-phase system. So what are the three phases of soil? So the soil mass in general is a three-phase system. So what are the three phases? First is solid, second is liquid, and third is gas. So the basically soil consists of solid, liquids, and gases. Liquid is a water. So as you know, and solid is our soil mass, and gases is air, which is present in the soil. So the solid particles are called as soil grains. So what are the solid particles? And they are called solid grains. And the voids means जो भी जगह होती है सॉइल के बीच में उसे हम voids कहते हैं. So the voids between the soil particles is filled partially with water. तो उनमें जो ऐसी जगह बाकी रहती है जो सॉइल में, तो वो आधी पानी से भरी हुई रहती है और आधी एयर से भरी हुई रहती है. तो जो पानी का जो फेज होता है, मतलब वो वाटर ही होता है और वो सब एक पार्शियली मतलब मेजोरिटी में पानी ही रहता है जो भी वॉइड्स रहते हैं सॉइल में. द गैसेस फेज इज एयर. सो air is occupied air is situated where the voids the water is not present in voids. So that is the thing about liquid phase. And these three constituents of soil mass are blended together to form a complex material. They do not occupy separate spaces. Alright. So the properties of soil mass depends upon relative percentage of these constituents and their arrangement. So the property जो भी soil के properties है वो इनके arrangement यानी कैसे arranged है, इनका जो proportion कैसा है वो हिसाब से properties determine की जाती है. So the relative volumetric and gravimetric proportions of the solids, water and air in soil mass are required to be studied. So ये इसके जो volumetric और gravimetric proportions है वो सब study करते हैं हम soil phase में. So इसमें बताया गया है हमें कि इसके phase diagrams होते हैं. तो soil mass में क्या होता है? Soil mass consists of solid particles, water and air. जैसे कि मैंने कहा, in soil mass volume of solid particles is highest. तो जब सबसे ज्यादा जो होते हैं प्रेजेंट वो solid particles ही होते हैं, मतलब यानी जब soil है तो उसमें soil ही प्रेजेंट रहेगा ना सबसे ज्यादा. The voids में भी filled of water और air. तो जो उसमें जो ऐसे गैप रहते हैं, देखो ये गैप है अंदर, ब्लू वाले गैप्स, ये सब ब्लू वाला गैप्स है. So these gaps these are called voids. And तो voids में भी filled of water आ रहा है. ये देखो ये यहाँ पे पानी से भरे हुए, यहाँ पे एयर से भरे हुए. मास ऑफ एयर इन सॉइल जीरो, राइट. जो भी एयर का जो मास होगा, वेट होगा, वो जीरो होगा सॉइल में. सॉइल पार्टिकल्स सब सेम साइज के हैं, मतलब एकदम वेल ग्रेडेड सॉइल पार्टिकल्स है, राइट. एंड मॉइस्चर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. जो मॉइस्चर है वो एकदम प्रॉपरली इवनली एक सबको इवनली दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ नेक्स्ट देयर इज अ थ्री फेज सिस्टम. So what is a three-phase system? As we see here, there are these types of three-phase systems. So let us study. So the first one is the first one case is partially dry and partially saturated soil. So what does this mean? So this is the composition of soil, which consists majority of solid, water, and air. So this is a diagram of partially dry and partially saturated soil. So you just need to remember it because it could be asked in a written exam, not in an online exam. So it says W of A, which means, as we can see here, this is W of A. W of A means weight of air. W means weight of water. W of S means weight of solid. Nothing serious, just, and this is a whole W means weight of all of these three. And on the right side of it, it is volume, and the same V volume of air.
volume of water and volume of solid. So on the right side it is volume, on the left side it is weight, and it is a partially saturated condition. The second condition which we see is the dry condition of soil, as you can see here. Second, yeah. So it's for fully dry soil. So as we could see, air and solids. All right. So two phases soils, solids and air are present. So in this particular diagram, it is fully dry soil. मतलब पूरा सूखा है. सूखा क्यों है? पानी ही नहीं है ना. There is no water, so there is so it is fully dry soil. So it will not consist any type of liquid or water. Water is absent and voids are filled with air. As you can see, the same it is given here for weight. For weight, it's given, and for volume, it's given here. Like weight of air, weight of solid, volume of voids, and equals to volume of water. Like it's not actually given here. So this is V, which is volume of air is equals to volume of voids. Solid, which is volume of S, V of S. And the third one, that is, since fully saturated soil, the voids are fully filled with only water, hence volume of voids is equals to volume of water. So here it is for fully saturated soil. So as you can see, all these definitions are given here. We could read them. And solid, water are present. So why is air absent, and why it is called fully saturated soil? It is called fully saturated soil because it consists of only solids and waters. So it's a fully saturated soil in the absence of air. If air would be present, it would be partially saturated soil, right? So moving forward, okay. So this is water content. It is also called moisture content. It is defined as the ratio of weight of water to the weight of solids. So what is water content? It is okay. Water content, it is defined as a ratio of weight of water to weight of solids. So like it's given here, it's weight of water to the weight of soil, which is weight of dry soil into 100%, like it's shown here. It's weight of water into weight of solids into 100%, as you can see. So by this formula, we could get a percentage water content, and if we only want water content, then remove the 100 from the formula. It would be only this. So this was the thing. And moving forward, so now we know soil. We know soil has water, which is water content. It is calculated by weight of water upon weight of solids, means weight of water, which we know, and weight of solids. But how do we know how do we know how much weight is there in water in the particular type of soil? Sorry, how much water is there in the particular type of soil? So for that, we will go to the determination of water content, by which we remove like how much percentage of water content is present in the soil. So for there are actually this much methods of 5 methods of water content determination, but we mostly use oven drying method, which is this method, and it's also given in the Raleigh book. It's it's an over drying method, which we know. As you know, these are the 5 methods which could be asked in exam, like state what are the 5 methods for water content determination. And now moving to the main method, which is over drying method, oven drying method. So now oven drying method. So oven drying method, what is it? It is actually a method to determine water content, how much water content is there in soil. So क्या I'll explain it in Hindi. So क्या किया जाता है, सबसे पहले सॉइल सैंपल लिया जाता है एक
स्मॉल नॉन करेडेबल एयरटाइट कंटेनर में मास ऑफ द सैंपल सबसे पहले वो लिया जाता है और उसकी जो एक्यूरेसी 0.04 होनी चाहिए। देन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में लेना है, तो क्वांटिटी ऑफ सैंपल डिटरमाइन होता है उसके ग्रेडेशन एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल्स, लाइक आई सेड, एंड डिग्री ऑफ वेटनेस ऑफ सॉइल। उसका वो ग्रेडेड कैसा है, उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे, ज्यादा बड़े ज्यादा छोटे, साइज कैसी पार्टिकल्स, और कितना गीला है, लेकिन सॉइल कितनी वेट है, वो हिसाब से लिया जाता है। और जितनी ड्राई रही सॉइल तो ज्यादा क्वांटिटी ली जाती है, लेकिन जो इसके ऑलरेडी दिया गया है, मतलब जो आईएस शीट की जो ये क्वांटिटी है वो यहाँ पे दी गई है, तो ये हिसाब से लेते हैं। आफ्टर दैट वो जो सॉइल सैंपल लेते हैं हम उसे एक कंटेनर में ड्राई किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस ±5 डिग्री सेल्सियस के 24 आवर्स के लिए। एंड देन इसको इसी टेम्परेचर पे ये किया जाता है, क्योंकि अगर इसको इससे कम किया तो ये सॉइल इवेपोरेशन नहीं होगा वाटर का, और इससे ज्यादा टेम्परेचर पे किया तो उसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सॉइल के वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें फिर केमिकली बाउंड जो स्ट्रक्चर वाटर बाकी सबका लॉस होगा। तो इसलिए 110 डिग्री सेल्सियस पे ही किया करते हैं। तो ओवन ड्राइंग 110 डिग्री सेल्सियस पे दिस डज नॉट गिव रिलायबल रिजल्ट। ये अच्छी तरह से देता है उस सॉइल के लिए जिस सॉइल में जिप्सम है, और या फिर उसमें या फिर अदर मिनरल्स है, क्योंकि उसमें से लूजली बाउंड वाटर ऑफ हाइड्रेशन, तो उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन का बॉन्ड होता है वो अच्छा बहुत लूज होता है। एंड टेम्परेचर इज नॉट suitable for soils containing significant amount of organic matter। जो सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर होता है तो उसके लिए भी ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। फिर ऐसे ऐसे सॉइल्स के लिए जो सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए कौन सा टेम्परेचर है, तो उसके लिए 60 to 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सब किया जाता है। एंड ज्यादा टेम्परेचर पे जिप्सम जो होता है, ये जिप्सम के लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि जिप्सम जो होता है वो वाटर क्रिस्टलाइन लूज कर देता है, और उसके बाद और जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो इसका जो ड्राइंग पीरियड है 24 आवर्स ही रिकमेंडेड है, और मतलब इसकी वजह से फुल इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का। एंड उसको तब तक ड्राई किया जाता है तब तक जब तक उसका एक कांस्टेंट मास, यानी भाई ये मास इसका कब से हमें दिख रहा है, ये इवेपोरेट नहीं हुआ है, तो तब तक इसको ड्राई किया जाता है। मेन ड्राइंग पीरियड इज 24 आवर्स में हो ही जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का वो कैसा है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। लेकिन इसमें कैसा किया है उन्होंने, देखो पहले इसमें फिर अभी क्या किया था, इसका इतना क्यों किया, तो उन्होंने क्या किया ना, जब भी पहले इन्होंने जो सॉइल लिया था उसका मतलब उसको कंटेनर में रखा था लिड के साथ, तो इन्होंने W1 जो है W1 लिया है, वेट ऑफ कंटेनर विथ लिड। सो W1 इज वेट ऑफ कंटेनर विथ लीड ऐसा लिया है, और W2 इज वेट ऑफ कंटेनर विथ लीड एंड वेट सॉइल। तो जो W2 है ये वेट ऑफ कंटेनर है, मतलब जो भी कंटेनर है उसका वेट, और वो लीड जो ऊपर लगती है उसका वेट, और वेट सॉइल का भी वेट। सो वो है W2, और जो तीसरा है वो हमारा ड्राई सॉइल का और वो सब कंटेनर का वेट। तो इन्होंने ऐसा किया है कि वेट ऑफ वाटर क्या आएगा, वेट ऑफ कंटेनर विथ ड्राई विथ लिड एंड वेट सॉइल अपॉन माइनस वेट ऑफ कंटेनर विथ लिड एंड ड्राई सॉइल। तो जो वेट सॉइल है, वेट सॉइल में से उन्होंने ड्राई सॉइल माइनस किया है, तो उससे उनको वेट ऑफ वाटर मिला, कितना वाटर है, तो राइट है ना। अगर हम वेट सॉइल का वेट की वजह से ड्राई सॉइल के वेट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एपेरेटस जो हमने यूज किया इसलिए हमने ये सब लीड और वेट ऑफ कंटेनर लिया है। एंड नीचे वेट ऑफ सॉलिड, अभी सॉइल का वेट कैसा आएगा, तो वेट ऑफ कंटेनर विद लीड एंड ड्राई सॉइल माइनस वेट ऑफ कंटेनर विद लीड। तो जो वेट ऑफ कंटेनर है हमारा, जो कंटेनर का जो भी वेट है उसको माइनस किया हमने ड्राई सॉइल की, जो हमारा मेन सॉइल है। सो मूविंग अप, तो ये एक अवन है जिससे मतलब हम करते हैं
ये जो प्रोसेस है हम इससे करते हैं, इसका प्रोसीजर। सो मूविंग नाउ वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या है, यहाँ पे जो भी मेन इंपॉर्टेंट है वो सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वॉइड रेशियो ये वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रेशियो है। ये सब फॉर्मूले है जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वॉइड्स ऑफ रेशियो यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जितना भी वॉइड्स का वॉल्यूम है, याद है हमने राइट साइड में वॉइड्स लिया था, तो वैसा ही पूरे वॉइड्स का वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पोरोसिटी, इट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, जो भी गैप है उस अपॉन टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट वाटर का जो भी वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो इससे हमारे आती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मूविंग फर्दर, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट यानी यहाँ पे जो था हमारा सबमर्ज्ड डेंसिटी है, वो submerged is defined as the ratio of submerged weight of solids। तो जो भी वेट है सॉइल का सबमर्ज यानी पानी में जो भी है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो इसका एक फॉर्मूला है जो दिया गया है, राइट। आप यू शुड मेमोराइज इट rather than like doing it. Moving further, bulk unit weight. What is bulk? It is total weight of soil on mass per unit of total volume. It is given. Dry unit weight. It is defined as the weight of solids per unit of total volume of the soil mass. मतलब weight of solids upon total volume of soil. It is dry unit weight. Saturated unit weight. It is when soil mass is saturated, its bulk unit weight is called saturated unit weight. Saturated unit weight is equals to total weight of saturated soil mass। तो जो भी saturated soil है उसका weight upon वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, जो भी सॉइल है उसका weight, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम, sorry not weight, unit weight of solids, it is weight of solids to the volume of solids, it is unit weight। Specific gravity is weight of given volume of solids of soil solids to the weight of equal volume of distilled water। So it is volume of soil solid, जो भी हमारा soil solid यानी जो भी soil mass है उसका उसके वॉल्यूम का वेट अपॉन इक्वल उसके जितना डिस्टिल्ड वाटर का वेट, वॉल्यूम का वेट। Density index or relative index, it is actually a formula given है, you could like memorize it down। and उसके बाद अगर जो हम देखते हैं, ये सब formulas मैंने बताया, इन सबको एक बार go put it through your eyes, and these are the interrelationships, these derivations aren't asked in exam, these aren't asked anywhere। So let's move further, I'll give you them, like these are the important formulas which you should like screenshot them right now, and it will help you solving whatever this is given. You could like see it from you could cross check it from this formulas given, and it would help in solving numericals। Moving forward, it is determination of bulk unit weight and dry unit weight। so bulk unit weight and dry unit weight जो भी हमने अभी देखा, तो उसको कैसे ये करते हैं, तो उसके लिए दो मेथड है, कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट। तो मेन हमारी कोर कटर मेथड है जो बहुत जगह भी पूछ जाता है। तो कटर मेथड कैसे यूज की जाती है, कोर कटर मेथड के लिए हमारे पास कोर कटर होना चाहिए, जिसका जो भी डिमेंशन है इसको एक बार देख लेना। स्टील डॉली एंड रैमर, ये तीन सबसे मेन है। तो दिस इज द कटर, जो कोर कटर है हमारा, दिस इज डॉली विच इज केप्ट ऑन द कोर कटर, एंड दिस इज रैमर जिसकी हेल्प से ये कटर को सॉइल में मारा जाता है, इसको ढस दिया जाता है। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर नाउ, तो
जो भी डिमेंशन है कोर कटर के, उसके उसको मेजर करो और उसके वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट करो। जो भी कोर कटर का अंदर का वॉल्यूम है इसको कैलकुलेट करो। देन कोर कटर का वेट करो डॉली के बिना। ये जो डॉली है इसको लगाए बिना इसका सिर्फ इसका वेट करना है, इसका वेट करना। देन उसको कहना है W1, द राइट इधर साइड। सो जो भी सॉइल, जो भी एरिया पे हम ये करने वाले तो उसका सब क्लीन कर लेना। जो भी टॉप ऑफ सॉइल है सब क्लीन कर लेना और उसको एक बार लेवल कर लेना, एक लेवल में लाना है। उसके बाद डॉली को जो है वो कोर कटर के टॉप पे रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, हाँ, ये डॉली को इसके ऊपर रखते हैं एंड इसको घुसा देते हैं सॉइल में विद द हेल्प ऑफ रैमर until about 1 to 1.5 सेंटीमीटर ऑफ डॉली रिमेन्स अबव द सरफेस। तो ये जो डॉली है इसके डिमेंशन 1 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए, तो उतना अंदर डालना है इसको। उतना अंदर जो डालते हैं रैमर की हेल्प से, ये रैमर है इसकी हेल्प से डालते हैं। देन डिग आउट द कंटेनर विच इज, जो भी कंटेनर है उसको एकदम बाहर निकालो सॉइल से और डॉली को भी उसके से निकालो और उसको एकदम फ्लैट कर दो। कटर को नीचे से और ऊपर से दोनों से एकदम फ्लैट कर दो। तो इसके बाद जो भी हमारा कटर रहेगा, ये कटर इसका वेट करो। उसमें सॉइल होगा, इसकी वजह से सॉइल और उसका दोनों का वेट आएगा उसमें। एंड ये 2-3 जगह पे ये टेस्ट करते जाओ और उससे हमें मिल जाएगा हमारा जो भी ड्राई बल्क यूनिट वेट है। तो ये ऊपर का फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट के लिए एंड नीचे का फॉर्मूला है ड्राई यूनिट वेट के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा W1 इज द वेट कटर, तो W2 माइनस W1, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों का जो सॉइल और कटर दोनों का वेट होगा W2। इसमें से हमें कटर का वेट अगर माइनस करेंगे तो सॉइल का वेट मिलेगा, डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम हमने पहले कैलकुलेट किया था इसका, वैसा करना है। एंड ड्राई यूनिट वेट के लिए बल्क यूनिट वेट जो भी हमने अभी निकाला जस्ट, अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। जो भी हम वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वाटर कंटेंट हम निकालेंगे ड्राई ओवन ड्राइंग मेथड से, जो कि हमने अभी देखा डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल ओवन ड्राइंग मेथड से हम उसको वाटर कंटेंट निकालेंगे और इससे हमारा ड्राई यूनिट वेट आएगा। तो ड्राई यूनिट वेट ऐसे और बल्क यूनिट वेट ऐसे। ड्राई यूनिट के वेट के लिए हमें वाटर कंटेंट लगेगा, बल्क यूनिट वेट के लिए हमें ये मेथड से ये आएगा हमारा। सो नेक्स्ट जो हमारी आती है विच इज, ये ऐसा इसको धंसते हैं अंदर, इसको अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद ये लेवल करते हैं। इसके फॉर्मूले, सो स्टैंड रिप्लेसमेंट मेथड जैसे ही है, तो इससे हम मास डेंसिटी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेटेड होल, जो भी होल का ये उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, ये जो मेथड है कोर कटर मेथड, ये सिर्फ ये ग्रेवल सॉइल जो होता है, ग्रेवल सॉइल उसमें यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रेवल सॉइल में लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं सॉइल के। तो अगर हम अगर इसको डालेंगे अंदर और निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से वो गिर जाते हैं। इसलिए हम ये मेथड नहीं यूज कर पाएंगे ग्रेवल सॉइल में, और हार्ड सॉइल में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते वहां पे हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। Sand replacement method is it is been asked in exam, so you could see the images of sand replacement method. ऐसा इसको किया जाता है। And now next is the specific gravity determination। जो भी specific gravity, वो उससे पहले हम हमारी बुक देखते हैं। So yeah, ये sand replacement method and this is specific gravity। So what is specific gravity? It is the ratio of weight of given volume of soil solids to the weight of distilled water of equal volume. Sorry, to the weight of distilled water of equal volume at 27 degrees Celsius. तो जैसे it is unit weight of soil upon unit weight of water, specific gravity, and इसकी जो रेंज है वो 2.65 to 2.180 तक रहती है। और जो स्मॉलर वैल्यूज है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि
इससे हम वॉइड रेशियो और पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं, जो कि हमने पहले देखा था। तो अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? सो स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय साइनोमीटर।